students, in this part of the video, you will study about electric field due to a uniformly charged ring. So we take a circular loop of wire of negligible thickness, its radius is A, and it is placed perpendicular to the plane of the paper, and the charge Q is uniformly distributed along its length. So at a distance r from its center O, a point P is taken where electric field intensity is to be calculated due to this entire charged ring. P point पर electric field निकालना है. So how will we find electric field at point P? For that we take a small element along the length of this circular loop. तो dl length का एक element लिया गया है, and what will be charge on this dl length? That will be lambda into dl. What is lambda? Lambda is linear charge density of this linear circular loop. तो लैम्डा की वैल्यू होगी चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप. चार्ज इस पूरे लूप में अगर Q है और इसका सरकमफेरेंस 2πa है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लूप विल बी लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई 2πa. तो dl इंटू लैम्डा विल बी चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट dl. इस dq को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं. व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस dq चार्ज एट पॉइंट p? दैट इज 1/4πε0 dq बाई this square, this distance is square. This distance is under root r square plus a square. By simple geometry of this diagram, this is hypotenuse, and this is equal to under root r square plus a square. R is the distance of point P from center O. So we can resolve this electric field into two components, dE cos theta along x-axis and dE sin theta along y-axis. As you know, electric field intensity is a vector quantity. Similarly, another element of same length dl is taken which is situated vertically opposite to element of length AB. AB पर जो एलिमेंट dl लेंथ का था उसी के वर्टिकली अपोजिट CD लेंथ सेम लेंथ का हमने एलिमेंट लिया है dl, and at the point P electric field intensity due to this dl element situated at point CD will be calculated. Electric field intensity is a vector quantity, as you know, so it is dE dash or dE1, although the magnitude is same that of dE, क्योंकि डिस्टेंस इस पॉइंट P की CD एलिमेंट से भी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही है, फिर भी ये dE1 होगा क्योंकि डायरेक्शन अलग है. This electric field intensity dE1 will also be resolved into two components. One component is along x-axis, horizontal component जिसे कहते हैं, that is dE1 cos theta, as you can see in this diagram, and dE1 sin theta will be vertical component. dE1 and dE, as you saw in previous case, both are same in magnitude. अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं. AB एलिमेंट और CD एलिमेंट से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी DE और DE1 है, दोनों को आपने रिजॉल्व किया है. DE1 cos theta, DE cos theta along x-axis रिजल्टेंट है, एंड द कंपोनेंट्स विच आर वर्टिकल कंपोनेंट्स DE1 sin theta and DE sin theta are equal in magnitude but opposite in direction, so these two will cancel out each other's effect. Theta is the angle which these linear elements are making with the axis of this circular loop at point P. So element dl at CD is taken of same length, and d sin theta component will cancel out with others d sin theta component. What will we get? We get only d cos theta components which will be added up. तो इसको हम कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर इस इंटायर रिंग से निकालना है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल दीज dE cos theta components. dE sin theta components will cancel out.
So that component we will not consider. Only d cos theta components will be taken into consideration. So net electric field at point P will be by integrating d cos theta. तो कितना हो जाएगा? E is equal to integration of d cos theta is equal to this ring is placed in free space, so 1 by 4 pi epsilon naught हमने लिया है. Q by r square, Q is dq by r square अंडर रूट r square plus a square था, उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा. और cos theta is equal to base by hypotenuse. Base is distance of point P from center O of the ring, वो है r, और hypotenuse कितना है? अंडर रूट r square plus a square. लैम्डा इंटू dl dq की जगह है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन r लैम्डा dl by r square plus a square होल टू द पावर 3/2. सो E विल बी इक्वल टू, केवल इसमें हम इसकी लेंथ के अलोंग, इसके सर्कमफरेंस के अलोंग इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dl के अलावा और सब बाहर आ जाएगा, और अदर टर्म्स आर कांस्टेंट. सो इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 pi a इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह पर 2 pi a और आ जाएगा. यू कैन सी दिस. E इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi a lambda r by r square plus a square होल टू द पावर 3/2. अब आप देखिए ये r बहुत बड़ा है a के कंपैरिजन में. a इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर लूप एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट लूप, एंड दैट मे वेरी. r काफी बड़ा भी आप ले सकते हैं. सो इन दैट केस विच व्हेन r इज मच ग्रेटर देन a, in that case we can ignore this a term here in this expression. R square plus a square whole to the power 3/2 can be reduced to r cube. इसमें a को इग्नोर करें तो ये r cube आ जाएगा. The expression will become E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi lambda a by r square. अब lambda क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, as you have already studied, q by 2 pi a. तो E is equal to क्या आ जाएगा? q by 2 pi a lambda की जगह पर आप रखें तो E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. इसको देख के आपको याद आ रहा होगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट. तो इसका मतलब क्या है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में p पॉइंट से एक्स एक्सिस मीन्स बढ़ती हुई एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी. And it is behaving just like a point charge for large distances. तो रिंग न होकर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है, provided the point where electric field intensity is to be calculated is at a greater distance than the radius of that circular ring. अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी? जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होनी चाहिए? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. मींस जहां पर मैक्सिमम होगी उसके बाद वो चेंज करेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में 0 आना चाहिए. सो डी बाई डी आर इज इक्वल टू 0. तो डी बाई डी आर ऑफ ई इज 1 by 4 pi epsilon naught pi lambda r बाई r square plus a square होल टू द पावर 3/2. ये 0 होना चाहिए. इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 1 by 4 pi epsilon naught pi lambda बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, डी बाई डी आर ऑफ r बाई r square plus a square होल टू द पावर 3/2. ये भी 0 होना चाहिए. अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है? दिस इज डिनोमिनेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. यहाँ पर न्यूमरेटर में r है, डी बाई डी आर ऑफ r माइनस देन न्यूमरेटर into differentiation of denominator by square of the denominator. It is formula of differentiation. इस फॉर्मूले को यूज करके you can get this is r square plus a square whole to the power 3/2 and the differentiation of r will be 1 minus first term, that means that numerator that is r, the differentiation of this denominator will be n x to the power n minus 1 3/2. X is r square plus a square whole to the power 1/2 to the power minus 1 means 3/2 minus 1 that is 1/2 हो जाएगा.
and then differentiation of this r square will also be there, that is 2r by square of this denominator. So r square plus a square whole cube. तो डी बाई डी आर इज इक्वल टू 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर होना चाहिए. ये पूरा टर्म 0 है, तो आप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सिंपल मैथमेटिक्स इज देयर. तो ये 0 होना चाहिए. ये अगर 0 है तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2. मीन्स आर जो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस रिंग के द्वारा मैक्सिमम है, वो दोनों तरफ है. मीन्स उसके सेंटर, उस रिंग के सेंटर ओ से पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है और नेगेटिव डायरेक्शन में है. बोथ साइड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम प्लस माइनस ए बाई रूट 2 इज द आर. तो इसकी वैल्यू आप रख दीजिए इस एक्सप्रेशन में. यहाँ पर आर की जगह पर ए बाई रूट 2 अगर आप रखेंगे तो ई मैक्सिमम की वैल्यू आपको मिलेगी ए बाई 6 रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट a square. This calculation you can make. So therefore the graphical representation क्या होगा उसका? ग्राफिकली अगर आप दिखाना चाहें कि E R के साथ कैसे वेरी कर रहा है, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो दैट यू कैन सी इन दिस ग्राफ. O पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती है तो ये मैक्सिमम हो जाती है. मैक्सिमम के बाद इन्फिनिटी की तरफ जाने पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर 0 हो जाती है. अगर उस रिंग की दूसरी साइड में आप जाएं तो r इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट 2 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ प्रीवियस वन. ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लिया है, या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, बट इन बोथ वेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू a बाई रूट 2. एट इंफिनिटी इट बिकम्स 0. सो दिस इज graphical representation of electric field intensity with increasing distance of the point along its axis from the center of the ring. इसको एक बार और आप देख सकते हैं. तो किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगा? a बाई रूट 2 पर मैक्सिमम होगा. तो दैट इज 70.7% ऑफ रेडियस ऑफ दिस रिंग. इसकी रेडियस a है, इसका 70% अगर आप लें तो इतनी लेंथ पर इसके सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होते रहेगी. व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग? अब आप ये देखिए इस एक्सप्रेशन में E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r लैम्डा बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन dl, और इंटीग्रेट करके ये एक्सप्रेशन मिला. अगर आप यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 रखते हैं, मीन्स एट द सेंटर ऑफ द रिंग r 0 होगा, तो इसमें अगर आप r 0 रखें तो E इज इक्वल टू 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी 0, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ r इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2, एंड इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड विल बी 0 एट द infinity. All about electric field intensity due to a ring. In next video you will study about Gauss theorem. Thank you.